Munchkins, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and in this class we are learning environmental fun for grade 4 by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start a new chapter number 11, teeth and tongue. तो अब हम बात करेंगे teeth और tongue के बारे में. So mouth is a very important part of our body. It consists of the tongue and teeth. They help us to digest what we eat. अब हम जो भी खाते हैं उन्हें digest करने में help करते हैं हमारे teeth और tongue. Our teeth help us to chew food properly before we swallow it. यानी कि हमारे निगलने से पहले खाने को chew करने में हमारे teeth हमारी help करते हैं. The teeth gives shape to our face and help us to speak clearly. वहीं पर जो teeth हैं हमारे face को shape देते हैं और हमें clearly बोलने में help करते हैं. The teeth also enhance the beauty of a person. वहीं पर जो teeth हैं वो person की beauty को enhance करते हैं. Our tongue helps us to taste and move food to the mouth. वहीं पर जो tongue है उसके थ्रू हम food के स्वाद को टेस्ट करते हैं और वहीं पर जो tongue है वो खाने को निगलने में हमारी मदद करती है. The tongue also helps in speaking. वहीं पर जो tongue है वो हमें बोलने में भी help करती है. Now अब हम बात करेंगे सबसे पहले teeth के बारे में. A newborn baby does not have any teeth. जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसके पास कोई भी teeth नहीं होते हैं. When the baby is 6 to 7 months old, जब बेबी 6 to 7 months का हो जाता है, teeth begin to appear. फिर उसके छोटे छोटे से teeth दिखना चालू होते हैं. By the time a baby is 3 years old, और जैसे ही बेबी 3 साल का होता है, it has a set of 20 teeth. इसके पास 20 teeth होते हैं. This set of teeth is called milk teeth और temporary teeth. और वहीं पर वो जो teeth हैं उस 3 years old बेबी के पास में उन्हें हम milk teeth कहते हैं, यानी दूध के दांत या फिर temporary दांत कहते हैं. When the child is about 6 years old, और जब बच्चा 6 साल का होता है, milk teeth begin to fall. वहीं पर उसके दूध के जो दांत हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं. They are replaced by a new set of teeth called permanent teeth. और वहीं पर 6 साल के बच्चे के permanent teeth आने शुरू होते हैं. By the time a child is 12 years old, यानी कि जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, all milk teeth are replaced by a set of permanent teeth. वहीं पर बच्चे के जितने भी दूध के दांत होते हैं वो permanent teeth के साथ रिप्लेस हो जाते हैं. For more teeth called wisdom teeth grow between the age of 20 and 30. फिर वहीं पर जो 4 दांत हैं उन्हें हम wisdom teeth कहते हैं, जो किस एज में आते हैं? 20 से 30 की एज में आते हैं. An adult has 32 permanent teeth. यानी कि वहीं पर जो एक adult होता है उसके पास 32 permanent teeth होते हैं. 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. वहीं पर 16 teeth हमारे upper jaw में होते हैं और 16 teeth हमारे lower jaw में होते हैं. When you lose any tooth of this set, अगर आप इसमें से किसी भी teeth को खो देते हैं या आपका दांत टूट जाता है, you do not get a new one in its place. तब इसकी जगह पर आपका नया दांत नहीं आता है. Now parts of a teeth. अब हम बात करेंगे हमारे teeth के कौन कौन से parts होते हैं. A tooth is made up of 2 main parts, crown and root. हमारा जो teeth है वो 2 main parts से मिलकर बना होता है. एक होती है root और एक होता है crown. Crown is the visible part of the tooth. The portion of the tooth which is inside the gums is called the root. यानी gums के अंदर जो part होता है उसे हम roots कहते हैं. The soft pink and fleshy parts surrounding the teeth are the gums. यानी कि जो यहाँ पर pinkish और fleshy area होता है उसे हम क्या कहते हैं? gums कहते हैं. Enamel is the hard substance covering the crown. वहीं पर जो enamel होता है वो हमारा hard substance होता है जो कि crown को cover करता है. Dentine supports the enamel and lies underneath it. Pulp is the soft substance that fills the empty space within the tooth. वहीं पर जो pulp है वो empty space को fill करता है. The pulp has blood vessels and nerves in it. वहीं पर जो pulp है उसके अंदर blood vessels होती हैं और साथ ही में nerves भी होती हैं. The blood vessels provide food to the teeth. वहीं पर जो blood vessels होती हैं वो teeth को food provide कराती हैं. यहाँ पर अब आपके पास एक इमेज दी गई है. यहाँ पर दिखाया गया है जो पतली पतली सी बारीक बारीक से थ्रेड आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं. यहाँ पर जो आप ये देख पा रहे हैं ये बोन है
यहाँ पर ये हमारी रूट कैनाल है, ये पल्प है, पल्प कैविटी देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिंकिश सा एरिया है ये टीथ के पास, ये गम है। ये जो अपर लेयर व्हाइट कलर की है ये आपका डेंटाइन है, और ये जो व्हाइट कलर का जो आप सरफेस टीथ में देख पा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, एनामल बोलते हैं। वहीं पर अब आपको कुछ टीथ्स की इमेज भी यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ टीथ की। हमारे जॉ के अंदर 32 टीथ होते हैं, 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में होते हैं। अब कितने प्रकार के टीथ होते हैं आइए जानते हैं। काइंड्स ऑफ अ टीथ, वी हैव अ वैरायटी ऑफ टीथ टू हेल्प अस ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। सबसे पहले बात करेंगे इंसाइजर्स की, जो कि आपके बाइटिंग टीथ होते हैं। जब आप बाइट करते हैं तो इंसाइजर टीथ की हेल्प से करते हैं। इंसाइजर्स आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ, यानी कि फ्रंट के जो 4 टीथ होते हैं उन्हें हम इंसाइजर्स कहते हैं, जो कि बाइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। दे हेल्प बाइट फूड। देन वी हैव कैनाइन्स, जो कि टीयरिंग टीथ होते हैं, जिनसे आप किसी चीज को ऐसे फाड़ते हैं। So these are the 2 pointed teeth, one on each side of the incisors, यानी कि incisors के साइड में क्या होते हैं, canines होते हैं। They help hold and tear food apart, उनसे हम क्या करते हैं, किसी भी पैकेट को होल्ड करके टीयर करते हैं। Then we have premolars, जिन्हें हम grinding teeth भी कहते हैं। There are 4 premolars in each jaw, हर एक jaw में 4 premolars होते हैं। They are next to the canines, canines के next कौन होते हैं, premolars। They are broad and flat, they help grind and mash the food we eat, यानी कि जो फूड हम खाते हैं तो हमारे पास जो प्रीमोलर्स होते हैं वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। They are also called cracking teeth, और इन्हें हम cracking teeth भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज दी गई है, तो हमारे पास ये जो 4 टीथ होते हैं, फ्रंट 4 होते हैं इंसाइजर्स, इंसाइजर्स के साइड में हमारे पास होते हैं कैनाइन्स, कैनाइन्स के बाद हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद हमारे पास आते हैं मोलर्स। नाउ अब हम बात करेंगे मोलर्स की, जिन्हें हम च्यूइंग टीथ भी कहते हैं। सो देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ में हमारे पास 6 मोलर्स होते हैं, 3 on each side of the premolars. Now they are broad teeth having point and grooves. They help in chewing the food, और वहीं पर ये जो हमारे पास मोलर्स हैं फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं। Now taking care of teeth, अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टीथ्स की टेक केयर कर सकते हैं। When we eat food, जब भी हम खाना खाते हैं, small bites get stuck between our teeth, वहीं पर जो small bites होते हैं वो हमारे टीथ में स्टक हो जाते हैं। These food particles are not removed if we do not brush our teeth properly. अगर हम अपने टीथ्स को प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे तो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो हमारे टीथ में ही स्टक रहते हैं। Germs grow on these teeth, यानी कि वहीं पर जो जर्म्स हैं वो हमारे टीथ्स पर कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। फूड पार्टिकल्स कोजिंग टूथ डिके, फिर वहीं पर जब जो स्टक फूड पार्टिकल्स हैं उनसे हमें टूथ डिके होने लगता है। ग्रेजुअली द नर्व्स आर डैमेज्ड, वहीं पर जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। When any hot or cold thing comes in contact with these exposed nerves, फिर वहीं पर अगर कोई भी ठंडी या गर्म चीज इन नर्व्स के कांटेक्ट में आती है, we experience tooth pain, फिर वहीं पर हमें दांत में दर्द होने लगता है। It is necessary to take care of our teeth so that they do not decay or fall, इसीलिए हमें अपने टीथ्स की टेक केयर करनी चाहिए so that हमारे टीथ में पेन ना हो और ना ही हमारे दांत टूटे। So it will be helpful if we follow these points, अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। Brush your teeth properly. Brush with small round movements to clean the teeth from outside. Next, move the toothbrush up and down to remove the food particles from the gaps between the teeth. फिर वहीं पर जितने भी टीथ के बीच में गैप्स हैं उनसे फूड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए अप एंड डाउन जो में। Never brush backwards and forwards. This can damage the gums. इससे आपके जो गम्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। Brush the inside of the teeth in each jaw gently. Now use a toothbrush which has soft bristles. वहीं पर आपको सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए जिसके जो ब्रशेज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। Rinse your mouth with water after every meal. हर एक मील के बाद में आपको गार्गल करने चाहिए। Rinsing help in removing the food particle stuck between the teeth.
यूज अ डेंटल फ्लॉस, कोई भी डेंटल फ्लॉस आप यूज कर सकते हैं. इट इज अ थ्रेड दैट हेल्प्स टू रिमूव फूड दैट इज स्टक बिटवीन योर टीथ वेयर द टूथ ब्रश कैन नॉट रीच. यानी कि जो हमारे पास डेंटल फ्लॉस होते हैं वो कुछ थ्रेड्स होते हैं जो कि हमारे फूड स्टक्स या फूड पार्टिकल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारे टीथ के गैप्स के बीच में स्टक हो जाता है और जहाँ तक हमारा ब्रश नहीं पहुँच पाता है. सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 बार ब्रश करें. वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस बिफोर यू गो टू बेड, यानी कि एक तो मॉर्निंग में और फिर सोने से पहले आपको ब्रश करना चाहिए. हेल्दी फूड्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड कैबेज एक्सरसाइज द गम्स एंड टीथ. नाउ अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए. Germs, cold bacteria grow very fast on them. They secrete an acid that makes a hole in your tooth. This hole is called a cavity. वहीं पर जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें खाते हैं तो उससे कैविटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको जंक फूड या फिर स्वीट्स को अवॉइड करना चाहिए. विजिट अ डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर, जिसे हम येलोइश परत कहते हैं, हमारे टीथ पर आ जाती है. सो दिस कैन बी रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, इसे केवल एक डेंटिस्ट ही रिमूव कर सकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टंग, यानी कि अब हम बात करेंगे टंग के बारे में. सो टंग इज अ मस्कुलर सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. इट हैज़ नो बोन्स, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है. इट हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, टंग की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं. द टंग हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इसके पास बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं. दे अपीयर एज टाइनी बम्प्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग, ये हमारी टंग की अपर सरफेस पर बम्प्स की तरह शो होते हैं. टेस्ट बर्ड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, वहीं पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट, जिससे हम खट्टा, मीठा, कड़वा और बहुत ही तीखा टेस्ट कर सकते हैं. Our tongue also help us to speak and to swallow food, वहीं पर जो हमारी टंग है वो हमें बोलने में हेल्प करती है और फूड को निगलने में भी हमारी हेल्प करती है. Now we will talk about taking care of the tongue. अब अपनी टंग की टेक केयर कैसे कर सकते हैं? We can take care of the tongue in the following ways. We should not eat spicy foods or drink very hot liquids. It can cause blisters on the tongue. Now the tongue gets covered with bacteria that grow in the mouth. हमारी टंग पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं. Clean the tongue gently with a tongue cleaner after brushing the teeth. वहीं पर टीथ को ब्रश करने के बाद में टंग को क्लीन करना चाहिए using a tongue cleaner. An unclean tongue causes bad breath. Now एनिमल्स एंड देयर टीथ, अब हम बात करेंगे एनिमल्स और उनके टीथ के बारे में. लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ. ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स के पास भी टीथ होते हैं. देयर टीथ आर सूटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, और उनके जो टीथ हैं अकॉर्डिंगली होते हैं कि वो कौन सा और कैसा फूड खाते हैं. नाउ हम बात करेंगे हर्बीवोरस एनिमल्स ईट प्लांट्स. वहीं पर जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं. They have a strong, flat and sharp front teeth incisors for biting and cutting the plants. वहीं पर जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, इसलिए उनके पास बाइटिंग टीथ होते हैं यानी कि इंसाइजर्स होते हैं. द मोलर्स आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड टू च्यू एंड मैश द फूड. वहीं पर उनके जो मोलर्स होते हैं बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड होते हैं. They have a gap between the front and the back teeth as they do not have canines. लेकिन जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उनके पास कैनाइंस नहीं होते हैं, इसीलिए उनके टीथ में गैप होता है. The long tusks of elephant are actually incisors that have become very long. अब जो एलिफेंट्स हैं उनके पास इंसाइजर्स होते हैं, जो लंबे लंबे से टीथ आप देख पाते हो that are incisors. Now carnivores eat flesh. वहीं पर अब जितने भी कार्निवोर्स होते हैं वो मांस खाते हैं. They have well developed canines to tear flesh and strong grinding teeth to chew it. वहीं पर उनके पास बहुत ही well developed canines होते हैं, क्योंकि canines हम यूज़ करते हैं टीयरिंग के लिए, तो टीयरिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं. Now rabbits, squirrels and rats eat fruits and nuts. वहीं पर जो खरगोश की बात करें, गिलहरी की बात करें या फिर चूहे की बात करें तो वो सब फ्रूट्स या फिर नट्स खाते हैं. So they have a pair of very sharp front teeth that help them to gnaw. Now they are called gnawing animals or rodents. The incisors of rodents grow continuously throughout their lives. और वहीं पर उनके जो teeth होते हैं वो throughout the life grow करते रहते हैं. Gnawing prevents their teeth from becoming too long.
नाउ रेप्टाइल्स एंड फिश हैव टीथ ऑफ नियरली द सेम साइज एंड शेप। वहीं पर अगर बात करें रेप्टाइल्स और फिश की तो उनके पास सेम ही साइज और शेप के टीथ होते हैं। दे यूज द टीथ टू कैच देयर प्रे, दे रिप्लेस देयर टीथ कॉन्टिन्यूसली। अब उनके जो टीथ है वो कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज टेक द करेक्ट आंसर। Last 4 teeth that come out between the age of 20 and 30 are called wisdom teeth. The center part of each tooth is called, वहीं पर जो center part होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम pulp, dentine या फिर crown, उसे हम कहते हैं dentine. Molars are also called, जो molars हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Chewing teeth कहते हैं. Dash teeth are 32 in number, जितने भी permanent teeth होते हैं वो 32 होते हैं. डैश हैव अ पेयर ऑफ वेरी शार्प फ्रंट टीथ, यानी कि उनके वो कौन से एनिमल्स होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि हार्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स खाते हैं, तो उन्हें फ्रंट टीथ की हेल्प चाहिए होती है बाइट करने के लिए। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स। कैनाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ्स, जो कैनाइन्स होते हैं क्या हम उन्हें बाइटिंग टीथ्स कहते हैं? इट इज फॉल्स। कैनाइन को तो हम टीयरिंग टीथ्स कहते हैं। A dentist is a doctor who treats our teeth. It is true. Now wisdom teeth grow between the age of 12 and 21. It is false, क्योंकि हमारे पास जो wisdom teeth हैं वो 20 से 30 की एज में आते हैं। The tongue has bones in it. It is false. हमारी टंग के पास कोई भी बोन नहीं होती है। Reptiles and fish never replace their teeth. It is false, क्योंकि वो अपने जो teeth हैं replace करते रहते हैं। नाउ लेबल द डायग्राम। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको सभी टीथ्स के नेम बताने हैं। हमारे पास फ्रंट 4 इंसाइजर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास कैनाइन्स आते हैं, फिर प्रीमोलर्स आते हैं और फिर मोलर्स आते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले इंसाइजर्स, देन हमारे पास आएंगे कैनाइन्स, देन हमारे पास आते हैं प्रीमोलर्स, देन हमारे पास आते हैं मोलर्स। Alright, next question we have answer these questions. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको करने हैं। Why are teeth important for us? यानी कि टीथ हमारे लिए important क्यों हैं? Name the 4 kinds of teeth human beings have. List their functions. यानी कि kinds of teeth आपको बताने हैं, incisor, canines, premolars and molars. उनके functions आप यहाँ पर explain करेंगे। What is the function of a tongue? टंग का क्या काम है? Then we have What are taste buds? Taste buds क्या होते हैं? With the help of a diagram show the different taste zones of the tongue. वहीं पर आप क्या करेंगे? टंग का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसके सभी पार्ट्स को शो करेंगे। So that's all for today's class. I hope this class was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, take care and bye-bye.